हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिव्यू शो। आज हम कांचना मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। गाने का टाइटल है विलय प्रलय मूर्ति। इसमें राघवा लॉरेंस लक्ष्मी राय है। इस मूवी के डायरेक्टर है राघवा लॉरेंस खुद, और सिंगर्स हैं इस गाने के श्रीराम, MLR कार्तिकेयन एंड मालती लक्ष्मण। लिरिक्स बाय विवेका। तो चलिए लिरिक्स देखते शुरू करते अपना रिएक्शन। पूजा रिचुअल కాంచన జరగవే. ఎవరు నువ్వు? కాంచన, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? నా పగ తీర్చుకోవడానికి వచ్చాను. పగ ఎవరి మీద? చెప్తా. వాళ్ళ కథలు ముగియ కంటి కొసల అగ్నులెదయ కండ కండగ ఒళ్ళు నరక కసి కసిగా గొంతు కొరక మృత్యు వచ్చి కేకలిడగా ప్రళయనాదం జగతి వినగా చుక్క చుక్కగా నెత్తురోడ దిక్కులన్నీ నక్కి చూడ చిత్రహింస చేయుచుండ శత్రువులే మాసిపోవగా. Oh my God. విలయ ప్రళయ మూర్తి వచ్చింది ఇదే కాంచన. మరణ మృదంగం మైని చీల్చవచ్చే కాంచన. Oh my God, the body movements, yeah. కసిగా 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 నిన్ను ఖండించేసి పోగా కాలరాచి నేడు నీ కథ ముగించేసి పోగా వచ్చింది 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 రా. Oh, that was nice. హోరు గాలిలాగా వచ్చరా నిన్ను నరికి పోగులెట్టగొచ్చరా. ఆడామగా కలిసి వచ్చరా నిన్ను మింగివేయ కాలికొచ్చరా. రే 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 విలయ ప్రళయ మూర్తి వచ్చింది ఇదే కాంచన. మరణ మృదంగమ్మై నిన్ను చీల్చవచ్చే కాంచన. विलन से क्या? That was nice. కపలమాలలు అగ్ని కొరియ కన్నుల మంటల సెగలు మెర్రయ అకాల వేళలో వెటకు వచ్చే లోకమదిరిపోగా కకరి నకలు చేతికి చిక్కంగా రకసి మూకల పీకలు నొక్కంగా కాళిక నాలుక తెరుచుకు వచ్చే కాలం ఆగిపోగా కొమ్ముల పాములు గోతుల దాచులు అందంగా మెరిసే నాగులు కట్ల పాము చుట్ల పాము తెల్లంగా మెరిసే నాగులు అరగ పాము మన్ను పాము నీకైనా నీటి పాము బుక్కల నాగులు తోడై వచ్చిందే. హౌరు గాలిలాగా వచ్చరా నిన్ను నరికి పోగులెట్టగొచ్చరా. ఆడామగా కలిసి వచ్చరా I like that step, yeah. ఇవేయ కాలికొచ్చరా. రే 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 ఉరుమురిమి గొంతునులిమి ఉరుమురిమి గొంతునులిమి కడ చేరుస్తానే. Did he stab himself? Oh, she can smell. She knows they are here. కన్నుల నిప్పుల మంట మండుతోంది కాలుడి గజ్జల గంట మోగుతోంది పగల పొగల సెగరగిలను మూడే కాలం వచ్చింది. నెలకు రాలిపోయే వేళ దిక్కులు అన్ని పేలిపోయే వేళ సింగపు నడకల సింగారి రూపాన మృత్యువు వచ్చింది. మండే తన కళ్ళు చూసి సూర్యుడే చిన్న పోగ శలరేగే వేగం చూసి సెలయేళ్ళే అదిరి పోగ తుకలే కోసి కోసి నెత్తుటేళ్లు పారిస్తుంది లోకాలని భయం తోటి పలికిపోగా. హౌరు గాలిలాగా వచ్చరా నిన్ను నరికి పోగులెట్టగొచ్చరా. I like that piano shaking also, yeah. ఆడామగా కలిసి వచ్చరా Gives that feeling to trembling. వేయ కాలికొచ్చరా. రే 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 ముఖియు వరకు రెప్పలకేది కులుకు కులుకు అదిలిస్తే నిన్నే బెదరు కదిలొస్తే భూమి అదురు కంటి ఎరుపు చూడు చూడు ఆరిపోని సెగలు రేపు ముక్కల ముక్కలు 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 ముద్దుల గుంటలు ముక్కలు చెక్కలు చిచ్చర కన్ను తెరుచుకున్నది జరుగునిక్కడ అసుర సంహారం. What? पक्का ये क्लाइमैक्स सीन है। इसके बाद विलन को भेज देंगे अपने फॉरएवर होम को रेस्ट करने के लिए। बट गायब हो गए यार वो लाइक गोस्ट पावर। आई डोंट थिंक मच अबाउट इट। मेरा उसमें मुझे वो क्यूरियोसिटी हैंडल नहीं होती है ज़्यादा सोची तो। एनीवेज गाना वाव,
विलय प्रलय मूर्ति वचिंदी इदे कांचना। आई नो ये तमिल मूवी है जो तेलुगु में डब किया गया है, वो लिपसिंग का दिख रहा था क्लियरली, बट तेलुगु में रिक्वेस्ट आया है, सो आई शायद मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला होगा उन्होंने कि तेलुगु समझ में आती है तो आप तेलुगु में देखिए शायद। थैंक यू सो मच, मुझे समझ में आया एंड सो नाइस यार। एंड मुझे गाना मुझे विलय प्रलय मूर्ति मुझे लगा कुछ भगवान के बारे में, शिव जी के बारे में, या फिर ऐसे ही भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे, उनके बारे में कुछ गाएंगे। हाँ, इट वॉज काइंड ऑफ भगवान के बारे में ही है, बट इट्स द वे ही किल्स द डीमंस, लाइक जिस तरह से क्रुएलिटी उनको दिखानी चाहिए डीमंस को, वो क्रुएलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया इन डिटेल। बहुत ही अच्छा था यार। लाइक यू नो एक माँ काली का जो फोटो वहाँ डाला गया है, माँ का, उनका जिस तरह से वो अपने यू नो शत्रुओं को, अपने जो भी उनके ऊपर अटैक करने आते हैं, उनके भक्तों के ऊपर हो जाए, भगवानों के ऊपर हो जाए, अटैक करने के लिए जो डीमंस आते हैं, उनको किस तरह से शिक्षा देती है, उनको किस तरह से यू नो मारती है, जब समझने शिक्षा देने पर जब नहीं मानते हैं तो उनको कैसे मारती है। तो आई थिंक दे डिस्क्राइब्ड इट इन डिटेल एंड राघवा लॉरेंस परफॉर्मेंस वॉज सो गुड यार। वो उनके बॉडी में नस नस में दिख रही थी कि ही इज़ वेरी मच यू नो एनर्जाइज्ड, वेरी मच इनटू दैट रिवेंज। लाइक जो भी मैंने ट्रेलर देखा था इसका, री रिलीज का जो ट्रेलर आया था, उसमें पता चल गया था कि यू नो जिस तरह से वो स्टैबिंग का दिखाया गया है। शरद कुमार जी कांचना है एंड राघवा लॉरेंस शायद शरद कुमार जी इनको यूज़ करते हैं, मरने के बाद उनका गोस्ट जो भी है शायद उनके अंदर चला जाता है, उनको नो उनके थ्रू उनके जो भी होते हैं ना विलन्स, उनको मारने की कोशिश करते रहते हैं। एंड द वे दैट वाज शोन, वाओ, लाइक तीन लोगों को शायद मार देते हैं, धोखे से मारते हैं शायद। सो आई थिंक ही वॉज रिमेंबरिंग दैट वाइल सिंगिंग दैट सॉन्ग, ही वॉज रिमेंबरिंग कि ऐसे मारा था हमको। वो जो लास्ट मोमेंट में जब निहत्ते यू नो वो असहाय स्थिति होती है ना कि मरते वक्त बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती है उनको मारना है बोल के, बट विल होता है कि आई हैव टू किल हिम, आई हैव टू मेक हिम पे फॉर व्हाट ही हैज़ डन। एंड लव्ड वंस को जो भी हमारे अपने होते हैं उनको भी हमारे सामने अगर मार दिया जाए तो वो उसका जो रेज होता है, पावर शायद पावर बॉडी में ना हो, बॉडी लिम्प हो, बट फिर भी वो मन में होता है ना, दिमाग में, सोर्स में जो होता है। आई थिंक दैट ही इज़ ऑल चैनलिंग नाउ। वो एक चैनल में अपने लाइक खुद में एक चैनल कर रहा है, वो जो भी रेज मरते वक्त था वो राघवा लॉरेंस को फील होने की तरह कर रहे हैं शायद, जो शरद कुमार जी का कांचना कैरेक्टर है। आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज लाइक ट्रेम्बलिंग, ही इज लाइक यू नो द वे ही इज एनर्जाइज्ड एंड यू नो ही इज डांसिंग विथ फुल हेट्रेड। उनका जो नर्व थे ना, जिस तरह से मुंह खोल के चिल्ला रहे थे, पूरा नस दिख रहे थे, वो वाह यार। एंड द फेस, ब्लडी फेस, दैट वाज बिट स्केरी, बट वो आंखों में वो रेज दिख रहा था, वो रिवेंज लेना है मुझे, कैसे भी आज उसको निपटाना है बोल के। एंड आई कैन सी दैट वो कार में कहीं जा रहे थे, मुझे लग रहा था भाग रहे हैं, बट दे केम टू दैट सेम प्लेस। वो मुझे समझ में नहीं आया क्यों, बट भी उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के जानबूझ के उनको वहाँ बुलवाया होगा, पता नहीं, बट ही कैन स्मेल इट। लाइक राघवा लॉरेंस जिस तरह से वो नो सूंघने की तरह कर रहे थे, ही नोज दैट, ही फील्स देयर प्रेजेंस। वो रिवेंज का इतना उन पे चढ़ गया है कि उनको पता चल रहा है, कितने भी दूर हो जाए अगर आसपास है तो उनको पता है कि हाँ है, ये आ गया, मेरी टेरिटरी में एंटर हो चुका है, सो आई कैन हैंडल हिम बोल के। सो आई थिंक लास्ट में गाना खत्म होते ही वो गायब हो गए ना, शायद उनके सामने प्रत्यक्ष होंगे जाके, आई डोंट नो व्हाट इट माइट बी, बट वो लग रहा है मुझे जिस तरह से गायब हो गए। बट यार गाना वाओ, द वे ही इज़ डिस्क्राइबिंग गले को बहुत जोर से दबाने का, और वो बीच में जो सांपों का कुछ यू नो आया ना, वो भी बहुत अच्छा लगा था। हाँ, दिख रहा था थोड़ा काइंड ऑफ जो भी सीजीआई है वो थोड़ा उतना लाइक ब्लेंड नहीं हुआ, बट फिर भी द वे एक एक वर्ड आ रहा था, कटलपा, वो जो गा रहे थे ना, एक एक सांप का जो नाम ले रहे थे उसका बोल रहे थे, तो वो जिस तरह से बोल के ऐसे हाथ डाल के डाल, तो वो सेक्शन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यार। इवन दो ही इज़ लाइक दिख रहा था सीजे उतना बढ़िया नहीं है, बट फिर भी लव्ड इट। गाने में जिस तरह से दिखाया गया है उनका डांस, और लेडी की तरह एक दो स्टेप को स्टार्टिंग में करते हैं, वो बॉडी मैनरिज्म मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो एक स्टेप जो स्टिफ हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे चलते रहे थे, वो मुझे अच्छा लगा। लाइक इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो नो थोड़ा स्टिफ होना पड़ता है, लाइक नो वो रिवेंज का वो दिख रहा था यार। आई नो
सी आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वर्ड्स में कैसे डालूं समझ में नहीं आ रहा है, बट या दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग ऑफ एन रिवेंज काइंड ऑफ सॉन्ग कि जो भी रिवेंज किस तरह से लेना है, अपने एनिमीज को कैसे मारना है, इस गाने में क्लियरली बताया गया है। बहुत ही अच्छा था यार, और सिंगर्स भी बहुत अच्छा काम किया, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। लाइक सिंगर्स भी तीनों एक साथ गा रहे थे, दो जेंट्स हैं और एक लेडी है शायद, एंड तीनों जिस तरह से मिल के गा रहे थे, उनका वॉइस सेटअप हो रहा था, क्योंकि आडा मगा कलसी वच्चे रा बोल के जो आया ना, सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू ब्लेंड दोस, लाइक ट्रांसजेंडर हैं ऑब्वियसली, सो जिस तरह से वो ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही प्यारा था यार। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा, द वे दे सेटअप, वो समुद्र के किनारे उन्होंने सेटअप किया है शूट को, बहुत अच्छा था। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कॉमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए बाय।